guys, मी तुमची मराठी मुलगी राजलक्ष्मी गोने and I welcome you guys to my channel. So this vlog is gonna be all about the Etihad interview process. If you all have watched on the YouTube channels, there are a lot of videos on how the interview process is going on of Etihad. And recently I've heard that there is an interview going on in India, and which is in Jaipur. So guys, I'm gonna just explain you in a very simple ways. I'm not gonna go totally into details because there are a lot of people who has made videos on how the process is going on. So let me start with my interviews, how it was May 2024 in Delhi. So इनका interviews होते हैं Delhi, Jaipur, because Bombay I've not heard about. I've just heard Jaipur and Delhi. So मेरा जो interview था, it was in Delhi and it was on 25th of March, sorry, May, 25th of May. So the thing was, like, when I applied for this interview was 2 years back. Like मैंने बस एप्लीकेशन डाल के रखी थी एंड उनसे एक बार ही मेरे को रिजेक्शन भी आया था. But after that, I was just like, let's try one more time. I was so sure that they are hiring a lot of crew, so मुझे एक बार और चांस करना था कि कैसे जाता है. So I just applied one more time and which got selected. And luckily it was back in 2023. मैंने सेकेंड मेरा इंटरव्यू ऑनलाइन एप्लीकेशन 2023 में डाला था और मुझे एंड में उसका सिलेक्शन का मेल आया था. When I'm supposed to record myself and send them my interview, like about myself, then they were asking me some questions. तो उस हिसाब से मुझे बोलना था कि क्या क्या चीज़ें हैं. एंड वो इंटरव्यू के बाद में मुझे आफ्टर आई गेस ऑलमोस्ट 6-7 months के बाद मुझे इंटरव्यू का मेल आया दैट माई एप्लीकेशन इज़ बिन सिलेक्टेड फॉर डेली इंटरव्यू विच इज़ 1-on-1 इंटरव्यू. तो आई वॉज प्रीटी हैप्पी बट आई वॉज नॉट श्योर क्योंकि मैं तब फ्लाई कर रही थी विद इंडिगो एंड माई स्केड्यूल वॉज वेरी टाइट दैट टाइम. सो आई वॉज लाइक, जो भी है मुझे ये इंटरव्यू देना है. सो आई हैड टू रिपोर्ट सिक फॉर दैट. और अभी मैं बोल रही हूँ, सो डजंट मैटर. And the thing was, I reported sick and I remember that I went to Delhi to give the interview, and I guess half of the Indigo crew, like most of the Indigo crew was there, and luckily most of them have got selected too, जो अभी हमारे एतिहाद में हैं. So yes, guys, I'm just gonna tell you one thing कि Etihad is hiring a lot. Okay, so don't get yourself down if you are not getting selected in one go, because उनका इंटरव्यू होते रह रहा है. And this year I guess they're gonna hire mostly 1,500 crew. Yeah, so this was an update that I believe that is true. So this was an update that was told by the airlines. So don't feel sad, don't feel demotivated, because they are hiring a lot of them, like a lot. और उनका इंटरव्यू एवरी ईयर आते जा रहा है बिकॉज इन लोगों के डेस्टिनेशंस भी बढ़ रहे हैं, फ्लाइट्स भी बढ़ रहे हैं, और बहुत चीज़ें जो हैं इनकी बहुत अपग्रेड होती जा रही है. सो आई गेस दिस इज़ अ गुड टाइम दैट यू कैन अप्लाई राइट नाउ. एंड इफ़ ऑल्सो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो ट्राई टू जस्ट अप्लाई फ्रॉम अनदर email address or something like that, because you have to try till you get into it. because मेरे को लगता है कि अभी ये लोग का प्रोसीजर इतना easy हो गया है कि everyone, like the people who are experienced, I guess for उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, because they get selected very very soon because they have an experience. And people who are new in the company, like they have not have their experience before, but their personality says it all, then they are selected by them also. So इनका प्रोसीजर्स ऐसे है कि they are not looking at your too much of कितना एक्सपीरियंस है, 10 साल एक्सपीरियंस है, 12 साल एक्सपीरियंस है, वो उस हिसाब से नहीं देखते. वो देखते कि आप कैसे अपने आप को कैरी करते हो, द वे यू आर, द वे यू टॉक, द वे यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, स्माइल ऑल द टाइम, लाइक वेन एवर यू आर एट द इंटरव्यू एट द लोकेशन, कीप स्माइलिंग. ऐसे नहीं कि पागलों जैसे स्माइल करते रहो, बट हैव दैट little smile on your face all the time when you're talking to people, when you're interacting with anyone. और because they look for everything, like जैसे तुम जाते हो सुबह से लेकर शाम तक, जब भी तुम रहते हो वहाँ पे, वो सब कुछ देखता है, like the way you're talking to people, sorry,
the way you're talking to people, the way you're interacting with people who are just being quiet, और जो लोग they are making some efforts, ये वो, तो वो सब चीज़ें देखते हैं. The way you sit, the way you walk, the way you everything, you've been an under observation throughout your interview. Okay, so let me start from where I my interview procedures, like मेरा दिन में क्या क्या था. So I got an email saying that my interview is scheduled on this date on in Delhi, so I'll have to travel. तो वो लोग मुझे एक approval के लिए mail भेजते हैं. So I approve that I will be there and all. So but for this interview thing, nothing has been provided by Etihad. It is all by your end, like stay, travel, everything by yours. Okay, so तुमको वहाँ पे जाना है. And जैसे मैं वहाँ पे गई थी, तो मेरा फर्स्ट डे का इंटरव्यू जो था, दैट वाज मेरा इस टाइम CV ड्रॉप नहीं था, क्योंकि बहुत लोगों का तो CV ड्रॉप भी था, बट हमारा इसलिए नहीं था क्योंकि वी हैड ऑलरेडी अप्लाइड, लाइक ऑलरेडी सबमिटेड आवर CVs एंड एवरीथिंग. सो हम वहाँ पे गए थे. जैसे हम गए थे तो वी हैड गॉट अ नंबर मेल पे, जितने लोग उस इंटरव्यू में आने वाले थे ऑन माई बैच, तो वो पूरा का पूरा डिटेल्स हमको भेजा था विद द नंबर्स. तो उन लोगों का एक जो कोड होता है, दैट नंबर वॉज फॉर अस. तो हम उस नंबर के हिसाब से वहाँ पे गए थे. एंड एज पर दैट नंबर्स दे वर कॉलिंग अस आउट. फर्स्ट वॉज देयर इंट्रोडक्शन अबाउट एतिहाद. एंड जैसे जैसे वो बोल रहे थे, the people who had taken our interview was 3 of them, and they were so professional and they were so friendly. They were like ये so approachable कि उनको देख के ऐसे नहीं लग रहा था भाई क्या होने वाला है. So but they were so nice, they were so friendly. And one thing is good that एतिहाद का culture बहुत सही है working wise, and the people in the company, the organization, the management is so good, so helpful, and they are so approachable that you will not even feel कि मैं पूछूँ या नहीं पूछूँ, what will they ask, this that. तो फिर it's very friendly environment over here. So there also for interview we felt so friendly and it was so approachable that हमको डर नहीं लग रहा था कि अभी क्या होगा क्या नहीं होगा. So first thing was our we said they gave us the information about Etihad, कि उनका ऑर्गेनाइजेशन कितना बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, what are their plans for 5 years, coming 5 years, और ये वो बता रहे थे. एंड उसके बाद में जो था, दैट वाज one-on-one इंटरेक्शन. तो वो एक एक लोगों को बुला रहे थे. सो 3 of them were there. So all 3 of them were taking our interviews. So they had put it, उन लोगों ने हमें एक एक ग्रुप में डाले थे. सो उस ग्रुप के हिसाब से हमको आना था उनके पास. So we went there, we had one-on-one interview, which was, they just asked me about myself, then they asked me उस दिन हमें उन्होंने ना चीट्स दिए थे. ओके, सो वी हैड टू पिक वन चीट एंड जो भी टॉपिक आएगा यू हैव टू टॉक अबाउट दैट टॉपिक जस्ट फॉर अ मिनट और सो. एंड उसके बाद दे जस्ट आस्क्ड मी व्हाट इज़ माय मोटिव, लाइक कि मुझे इस एतिहाद में क्यों आना है, व्हाई आई वांट टू लीव माय द एयरलाइन दैट आई वाज वर्किंग. सो बेसिक क्वेश्चंस ये पूछा था. तो उसके बाद में हाइट देखा था, देन दे चेक्ड आवर स्कार्स है या नहीं, एंड देन दे चेक्ड फॉर आवर टैटूज विच इज़ विजिबल नहीं होने चाहिए. तो उनका क्राइटेरिया बस इतना है कि यहाँ से यहाँ तक तुम्हें टैटूज नहीं होने चाहिए, और पैरों से नी से लेकर पैरों तक नो टैटूज. रेस्ट जहाँ पे भी तुम्हें टैटूज है, दे डोंट रियली केयर अबाउट इट. तो दिस वॉज द प्रोसीजर फॉर फर्स्ट डे. सो वी वेंट, तो हम one-on-one इंटरव्यू होने के बाद हम बाहर रुके थे. सो दे टोल्ड अस एज सुन एज ऑल द इंटरव्यू गेट ओवर, सबका इंटरव्यू जब खत्म होगा, दे विल टेक 1-1 नंबर्स. तो दैट वाज वेरी स्कैरी टाइम फॉर अस. तो हम सभी बैठे हुए थे साथ में, एंड देन शी वाज टेकिंग 1-1 नंबर्स कि जो और जिसके वो नंबर्स ले रही थी वो सिलेक्टेड नहीं थे. तो वी वर लाइक, आई वाज जस्ट प्रेइंग कि मेरा नंबर ना हो. So then I got cleared on my first round, and then later on the second round was your GD round. Okay, so इस GD round में उन्होंने किया क्या था कि हमको एक ग्रुप में डाल दिया था. फिर से 5-5 लोगों को ग्रुप में डाल दिया था, जहाँ पे बॉयज़ भी है, गर्ल्स भी है, एवरीवन. सो ग्रुप में डालने के बाद में उन्होंने हमको एक टॉपिक दिया था. ओके, एंड ऑन दैट टॉपिक वी हैड टू डिस्कस. टॉपिक मतलब एक सिचुएशन दी गई थी. मतलब अभी एक एक मैरिज चल रहा है, उस मैरिज में 5 सिचुएशंस हो गई है. जैसे कि ब्राइड का जो गाउन है वो फट गया है, ब्राइड की जो मॉम है वो बाथरूम में गिर गई है, ब्राइड के जो अंकल है उनका एक्सीडेंट हो गया है,
और ऐसे कुछ ऑप्शंस दिए थे, तो हम किसको पहले बचाएंगे उनमें से, मतलब किसको पहले हम देखेंगे। तुम्हें ग्रुप में ना डिस्कस करना होगा कि तुम पहले किसको देखोगे और क्यों देखोगे। सो दिस वॉज अ डिस्कशन इन अ ग्रुप, एंड उस ग्रुप में भी तुम्हें स्टैंड आउट नहीं होना है, ओके। इन दैट ग्रुप दैट दे ओनली सी हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग, हाउ यू आर अप्रोचिंग, और हाउ यू आर गिविंग समवन एल्स अ टाइम टू स्पीक। एंड वो लोग ये भी देखते हैं कि तुम कितना कट करते हो दूसरों को, है ना वो। तो जब भी तुम ग्रुप डिस्कशन में करते हो, तो हमारे ग्रुप में ऐसा था कि देयर वर 2 गर्ल्स हु वर जस्ट टॉकिंग टॉकिंग टॉकिंग, वो हमें बता ही नहीं रही थी, हमें टाइम ही नहीं दे रही थी बोलने के लिए, बट वी वर नॉट कटिंग देम ऑफ, ओके। तो आई जस्ट गिव यू एग्जाम्पल वॉट यू कैन डू इज़ लाइक, अगर ग्रुप डिस्कशन में तुम्हें डाला गया है एंड इफ समवन इज़ नॉट अलाउिंग यू टू गिव, तो जस्ट in between you can say, I'm so sorry but I have just one point, if that could include, तुम बाद में स्टार्ट कर सकते हो तुम्हारा, और तुम उसको बोल सकते हो जो बोल ही नहीं रहा, तो तुम उसको बोल सकते हो कि what do you think, like do you think this could work, you know। उस हिसाब से अगर तुम बात करने लगोगे, इफ़ यू आर गिविंग somebody else also chance to get involved, they see that also, क्योंकि हमारे इसमें वो भी देख रहे थे। So this was the thing, the way you are talking, the way you are approaching yourself, ये सब चीज़ें थी। तो उसके बाद में दे टोल्ड अस कि ओके तुम्हारा अभी हो गया है, तुम सभी घर जा सकते हो। एंड वी वर लाइक दैट्स इट, इज दिस द इंटरव्यू। तो मुझे नहीं पता था दिस इंटरव्यू वुड गो द सेकेंड डे एज वेल। तो मैं चली गई, तो उन्होंने बोला हमें कि तुम्हें 7 बजे, इवनिंग के 7 बजे से पहले तुम्हें एक मेल आ जाएगा। अगर तुम सिलेक्टेड होंगे तो तुम्हें मेल आएगा, अगर तुम सिलेक्ट नहीं होंगे तो भी तुमको रिजेक्शन मेल आ जाएगा। बट उस रिजेक्शन मेल में तुम्हें ये नहीं बताएंगे कि तुम क्यों सिलेक्ट नहीं हुए हो, बिकॉज ऑफ कोर्स देयर वर सो मेनी पीपल कि वो सबको एक एक थोड़ी ना बताते कि तुम्हारा क्या ये वो। सो मेल आया, तो मेल आने वाला था। आई वेंट बैक टू माई प्लेस। जैसे मैं गई, आई वॉज सो स्कैर्ड, आई वॉज लाइक वेटिंग फॉर दैट द क्लॉक टू गेट ऑन 7 एंड लेट मी गेट दैट मेल। लाइक मैं उतनी ही स्ट्रेस में थी उस दिन। आई कुडंट ईट, आई कुडंट स्लीप, आई कुडंट डू एनीथिंग। और जैसे मैं बैठी हुई थी, जब 7 बज गए, 7 बज के गए, आई वाज लाइक आई एम नॉट गेटिंग मेल एंड आई एम टेक्सटिंग माई फ्रेंड्स, आई एम लाइक ब्रो आई गेस मैं नहीं हो रही हूँ बिकॉज आई गेस आई एम नॉट गेटिंग मेल। तो उन्होंने बोला यू इवन डिड नॉट गेट रिजेक्शन मेल, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तो मैं रुकी हूँ एंड देन आई गेट अ मेल सेइंग यू आर बीन सिलेक्टेड फॉर टुमारोज राउंड। और जब तुम वहाँ पे जाते हो, जब तुम्हें ये कहा गया है कि तुम घर चले जाओ, तुम्हें नेक्स्ट डे का इंटरव्यू का मेल आ जाएगा 7 बजे तक, या फिर वो टाइमिंग दे देंगे। तो तुम्हें नेक्स्ट डे का पूरा उसमें लिखा हुआ होता है कि तुम्हें क्या क्या करना है नेक्स्ट डे, तुम्हें क्या क्या चीज़ें लानी है नेक्स्ट डे के लिए। सो दे आस्क्ड मी टू गेट माई पासपोर्ट साइज पिक्चर एंड फुल साइज पिक्चर इन अ फॉर्मल्स, ओके। बट उस फॉर्मल में भी तुम्हें मेकअप जो भी कर रहे हो, इट शुडंट बी अ स्टूडियो क्लिक फोटो, इट शुड बी अ फोन क्लिक फोटो, इट शुडंट बी अ स्टूडियो। क्योंकि उस स्टूडियो में तो तुम एडिटिंग करते हो, तो इनको एडिटिंग वाले पिक्चर्स नहीं चाहिए होती है। सो व्हेन आई वेंट बैक टू द इंटरव्यू थिंग द नेक्स्ट डे, व्हाट आई डिड वाज, मैंने वहीं पर क्लिक कर दी थी फ़ोटो, फुल साइज़ और शॉर्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और उनको मैंने भेज दिया था। तो वो आपको लिंक भी भेजेंगे, वो आपको ईमेल एड्रेस भी भेजेंगे जहाँ पे तुम भेज सकते हो। तो उस हिसाब से हमने भेज दिया था। और ऑल्सो दे वॉन्ट पिक्चर इन योर फॉर्मल्स, सॉरी नॉट फॉर्मल्स, योर कैजुअल्स, लाइक एक जीन्स पहन लो और एक वाइट या ब्लैक टी शर्ट पहन लो जहाँ पे योर स्किन कुड बी सीन एंड योर फेस कुड बी सीन प्रॉपरली, विद टाई योर हेयर एंड क्लिक अ पासपोर्ट साइज एंड अ फुल साइज पिक्चर एंड सेंड इट टू देम। उसके बाद में हमें बुलाया गया था, देन वी सेट देयर। तो उन्होंने फिर से हमारा एक जीडी राउंड लिया था, बट दिस टाइम द जीडी राउंड वाज टोटली डिफरेंट। सो इसमें भी हमको एक एक स्लॉट में डाल दिया था एंड दे गेव अ बिग चार्ट पेपर ऑन द टेबल, ओके। एक टेबल होता है, वहाँ पे एक बड़ा सा चार्ट पेपर होता है। उस चार्ट पेपर में ना मैप होता है, ठीक है। इट्स लाइक अ मैप, हर जगह का मैप होता है, जहाँ पे एक स्कूल का मैप है कि इसका एक उसका, बट वहाँ पे लिखा नहीं गया है कि कहाँ स्कूल है कहाँ क्या है। सो इट्स जस्ट अ एम्प्टी मैप, ओके। उस मैप में तुमको प्लग कार्ड्स देंगे, विच इज़ लाइक स्मॉल प्लग कार्ड्स देंगे। तो ऑन दोज प्लग कार्ड्स ना वहाँ पे एक ऐसे पिक्चर्स होते हैं जहाँ होटल के पिक्चर्स होंगे, बैंक के पिक्चर्स होंगे, स्कूल के पिक्चर्स होंगे, हॉस्पिटल के पिक्चर्स होंगे, देन ATMs के पिक्चर्स होंगे, देन शॉपिंग मॉल्स एंड यू नो ऑल दैट बिल्डिंग्स एंड एवरीथिंग।
अपार्टमेंट्स, इन सब के प्लग कार्ड्स थे. तो दे टोल्ड अस कि तुम ये सब चीज़ें एक एक चीज़ों में डालो जहाँ पे तुमको लगता है कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए, ठीक है. और वहाँ पे एक एयरपोर्ट भी दिया गया था, पेट्रोल पंप भी दिया गया था, यू नो लाइक दैट. तो एक मैप में हमें दिया गया था. देन वी हैड टू डिस्कस कि व्हाट थिंग्स टू बी कमिंग वेयर. तो हमने क्या किया था, स्कूल के जगह पे हमने एक स्कूल डाल दिया, एक हॉस्पिटल डाल दिया और एक हमने कैफ़े डाल दिया, ठीक है. नाउ आई एम सेइंग व्हाई. तो यहाँ पे हमको एक्सप्लेन करना है कि हम तीनों चीज़ें क्यों डाली है. तो जहाँ पे स्कूल है वहाँ पे हॉस्पिटल है, बिकॉज स्कूल में बच्चे हैं, बच्चे गिरते हैं, पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें होती है. सो दे कैन हैव डायरेक्टली एक्सेस टू द हॉस्पिटल. तो हॉस्पिटल के पास हमने एक कैफ़े भी डाल दिया. तो पीपल हु आर कमिंग फॉर द हॉस्पिटल थिंग, अगर कोई किसी को देखने आ रहा है, कुछ करने आ रहा है, दे कैन हैव अ वेटिंग एरिया जहाँ पे कैफ़े होगा. समझ रहे हो. सो इट इज़ लाइक दैट. सो यू हैव टू मेक एवरीथिंग इन अ प्रॉपर प्लेस एंड यू हैव टू एक्सप्लेन वाई you have kept those things on that places. So this was there. And please guys, I'm gonna tell you one more thing. Be before time, not on time. In aviation, on time it means you are late. So please be before time. अगर तुमको इस टाइम पे बुलाया, तुम 1 घंटे पहले चले जाओ वहाँ पे, बिकॉज इट्स एन इंटरव्यू. फॉर इंटरव्यू दे सी व्हाट टाइम यू आर कमिंग एंड हाउ हैसल्ड आर यू, और तुम कैसे आए हो, आर यू काम, आर यू वॉट, सब कुछ नोटिस होता है. सो हम वहाँ पे पहुँचे, हमारा ग्रुप डिस्कशन हुआ. तो ग्रुप डिस्कशन के बाद उन्होंने हमसे पूछा एक एक करके कि तुम ये बताओ, तुम ये बताओ, तुम ये बताओ, क्या क्या चीज़ है. तो ऐसे नहीं था कि तुम तुम्हारे खुद से ही बता रहे हो. सो दे वर आस्किंग अस. ऑल्सो दे हैव टोल्ड अस कि टाइम लिमिट भी बताया था, उस टाइम में तुम्हें ये सब चीज़ें ख़त्म करनी है. तो हमारे इसमें हमने गलती करी थी कि हमने टाइम नोट ही नहीं करा कि क्या टाइम हो रहा था. सो वही आके हमको बताने लगे कि गाइस योर टाइम इज़ अप and I've seen that nobody has calculated the time. तो हमको तभी रियलाइज़ हो गया कि भाई हमने टाइम ही नहीं देखा. तो गाइज whenever you are at this group discussion, जब भी वो कुछ भी बोलते हैं उस पर ध्यान दो, क्योंकि हमने वो मिस्टेक करी थी. तो मैंने तो मेरे फ्रेंड्स को बोला था जो भी इंटरव्यूज़ पे थे कि डोंट डू दिस मिस्टेक, एंड उन्होंने वो मिस्टेक याद करके वहाँ पे करेक्ट करा. सो दैट्स हाउ प्लस पॉइंट उनको भी मिल जाता है. तो इट इज़ लाइक दैट. एंड ऑलवेज व्हेन यू आर गोइंग टू अ इंटरव्यू, help each other, I feel, because if you help each other, that's how you will also feel relief, and तुमको भी वो confidence आएगा कि हाँ भाई, there are people who are looking after you guys. Okay, so this was on the second day. तो जैसे ये ग्रुप डिस्कशन हुआ, फिर से उन्होंने नंबर्स लेना चालू कर दिया कि कौन सिलेक्टेड है, कौन सिलेक्टेड नहीं है. तो अगेन दे टुक आवर नंबर्स एंड लकीली आई गॉट थ्रू दैट ऑल्सो. एंड उसके बाद था फिर से 1-on-1 इंटरव्यू. तो जो अभी ये लास्ट का 1-on-1 इंटरव्यू था वो रिकॉर्डेड था, ठीक है. सो दे वर उन्होंने ऐसे फ़ोन रखा था एंड दे वर कॉलिंग वन बाय वन. तो हम आ गए, हम बैठे. आई सेट विद हर एंड शी वॉज सो स्वीट, शी वॉज सो नाइस. तो जैसे व्हेन यू गो टू हर, लाइक व्हेन यू गो टू एनी इंटरव्यूअर, देन यू जस्ट गो एंड से हाय, हेलो, हाउ यू डूइंग, डिड यू मैनेज टू ड्रिंक वाटर, डिड यू मैनेज टू हाइड्रेट योरसेल्फ, लाइक ट्राई टू टॉक टू दैम, लाइक थोड़ा सा वो आइस ब्रेक करने की कोशिश करो, लाइक हाउ यू डूइंग, दिस दैट, हाउ वाज योर डे, दिस दैट, पूछो उनको. ओके. सो आई सेड, आई वाज लाइक हेलो, हाउ यू डूइंग, दिस दैट. देन आई सेड, देन शी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग. उसने ऐसे अपना फ़ोन रख दिया साइड में, रिकॉर्ड चालू करा. उसे मुझे बोला आई विल बी रिकॉर्डिंग दिस इंटरव्यू ऑफ योर्स जस्ट टू कीप इट फॉर अ रिकॉर्ड पर्पज़, कि हम जो जो चीज़ें यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम ये है, हम वो है, तो दिस ऑल हैव बीन रिकॉर्डेड. दैट तुम यहाँ पे तो बता दिए, तुम वहाँ पे आने के बाद तुम चेंज नहीं कर सकते तुम्हारे वर्ड्स. So I was like, okay, ठीक है. I was like, yeah, sure, not a problem. Then I said, then she was talking to me. Then she asked me, how was your day? How did you feel this interview was? ये वो. And then she came to the proper questions. She was like, tell me about yourself. How would I know you more? So I told her blah 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 ये. तो she saw my CV. उस CV में देख के वो बता रही थी, okay, you are experienced, ये वो ऐसे वैसे. Then she was like, yeah, this that. फिर उसके बाद उसने बोला, डू यू हैव एनी स्कार्स ऑन योर हैंड्स और लेग्स एनीवेयर. सो आई सेड नो, आई डोंट हैव एनी विजिबल स्कार्स. सो शी आस्क्ड मी फॉर टैटूज, डू आई हैव एनी टैटूज, एंड आई हैव टैटूज, लाइक मेरे में टैटूज है. और लकीली आई नो दैट मैंने विजिबल एरियाज में टैटूज नहीं करवाए, बिकॉज आई एम इन द इंडस्ट्री वेयर हमें अलाउड है ही नहीं, एंड आई डोंट वांटेड टू टेक अ रिस्क अबाउट इट. तो
मैंने उस एरिया में मैंने निकाले ही नहीं टैटूज. सो आई हैव टैटूज फ्रॉम अबाव, लाइक यहाँ पे ऊपर है, एंड इट्स नॉट लाइक हाथों पे नहीं है. So then I told her I don't have any visible tattoos, but I do have tattoos. So she said that's okay, but if it's visible, let us know. So I said no, it's not visible. तो उसने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था कि tell me something that you have done out of the box to make a passenger feel happy. So we had to share the experience where I have done something very nice for a passenger. एंड उसने फिर मेरे को एक सिचुएशन दे दिया कि ओके ऑन द फ्लाइट सो एंड सो फ्लाइट वन पैसेंजर हैज़ बुकड फॉर एक्सेल सीट, और ऑल ऑफ सडन तुम्हारा एयरक्राफ्ट चेंज हो जाता है. ओके, विच इज़ कॉमन, लाइक ये होता है. व्हेन द एयरक्राफ्ट गॉट चेंज्ड, उसको वो एक्सेल सीट नहीं मिली और उसको नॉर्मल सीट मिल गई. सो व्हाट यू गोना डू इन दिस सिचुएशन. तो ये सिचुएशन तो हमने बहुत हैंडल कर चुके हैं इंडिगो में. तो आई टोल्ड हर कि आई वुड गिव हिम वन लाइक रो वेयर देर आर 3 सीट्स फ्री, जहाँ पे कोई बैठा ही नहीं है, बस उसको पूरा रो दे देंगे इफ़ देर इज़ अवेलेबिलिटी. और वी कुड डू समथिंग लाइक सर्विस रिकवरी, जो भी चीज़ें हैं वो. तो उसने बोला ओ नाइस. ऑल्सो देयर वाज अनदर क्वेश्चन वेयर शी आस्क्ड मी कि विच वॉज द डिफ़िकल्ट पॉइंट ऑफ योर फ्लाइंग करियर, लाइक तुम्हारा कौन सा ऐसा टाइम था जो तुम्हारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था. So I shared my experience where there was a death on board in our aircraft. तो वो मैंने उसके साथ एक्सपीरियंस शेयर करा. So she was like oh that's really nice, ये वो. तो फिर उसके बाद हमारा ये इंटरव्यू ख़त्म हो गया. So she told me कि okay fine, you can go back and we will let you know by email if you are selected or no, and we will also give you a time where you can resign to your company. और ये सब चीज़ें मुझे बताई गई थी. एंड देन आई वाज लाइक कि ओके फाइन. एंड देन आई वेंट बैक, मैं घर पे आ गई. उसके बाद उन्होंने हमें ये भी बताया गया था कि हमें एक इंग्लिश टेस्ट आएगा. जैसे हम अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो हमें एक इंग्लिश टेस्ट आएगा. तो मैं जैसे घर पे आ गई वापस, आई केम बैक टू माई बेस बॉम्बे. आफ्टर अ वीक, 1 वीक मुझे इंग्लिश टेस्ट आया था. जैसे मेरा ये 1-on-1 इंटरव्यू ख़त्म हो गया, वैसे मैं घर पे चली गई. और घर पे जाने के बाद 1 वीक के बाद मुझे इंग्लिश टेस्ट का मेल आ गया दैट यू हैव टू सॉल्व दिस इंग्लिश टेस्ट इन दिस टाइम. तो मैंने बोला ठीक है भाई, कर लेते. मुझे लगा ये इंग्लिश टेस्ट भी नॉर्मल होगा, क्योंकि मैंने कतार का इंटरव्यू भी दिया था जिसमें इंग्लिश टेस्ट वो रियली बेसिक थे वो. तो मुझे लगा ये भी होगा. सो व्हेन आई सेट विद दैट इंग्लिश टेस्ट एंड इट लिटरली टुक मी 2 hours टू सॉल्व दैट टेस्ट, बिकॉज वो इतना कॉम्प्लिकेटेड था. The questions were so complicated. They were having such paragraphs where you have to read all the paragraphs and then answer these questions. But there is a twist. उस भी questions में तुम्हें twisted करके लिखे होंगे जहाँ पे तुम्हें answers ढूंढने के लिए मुश्किल होगा, like that. So it was like that. और वैसे ही बहुत सारे questions थे and it was really time consuming. Like इतना time जा रहा था उसमें. And उसके बाद में और भी इंग्लिश टेस्ट में वैसे भी होता है क्वेश्चन, जैसे कि तुम्हें ना एक ऑडियो सुनाई देगा. ओके, उस ऑडियो बस तुम 3 बार सुन सकते हो. ओके, यू कैन ओनली लिसन टू दैट ऑडियो फॉर द 3 times. एंड जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उस पर वो आंसर करने हैं आपको. समझ रहे हो? मतलब उसमें 3 क्वेश्चंस हैं और तुम्हें एक ऑडियो दिया है. सो यू आर लिसनिंग टू दैट ऑडियो, और वो ऑडियो भी थोड़ा कन्वर्जेशन होता है. ठीक है, किसी के दोनों के बीच में कन्वर्जेशन होता है. उस कन्वर्जेशन के हिसाब से तुम्हें वो आंसर सॉल्व करने हैं. So that is that tricky. So it's not easy to solve this English test as well. तो ये हो गया एंड मैंने ये आंसर कर दिया. लिटरली टुक मी 2.5-2 hours समथिंग लाइक दैट. और मैंने कैसे तैसे आंसर कर दिया. मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम में मैं बोर हो गई थी इस इंग्लिश टेस्ट, बिकॉज ये ख़त्म ही नहीं हो रहा था. बिकॉज इट हैड सो मैनी क्वेश्चंस. लाइक तुम पैराग्राफ भी देखो, तुम देन फिल इन द ब्लैंक्स भी लिखो, तुम ग्रामर भी देखो, तुम ये भी देखो वो भी देखो. बट इट वॉज अ लॉट, इट वॉज वेरी लेंथी. सो दिस वॉज इट. एंड उसके बाद में आफ्टर अ वीक आई गॉट माई ऑफर लेटर. जैसे मुझे ऑफर लेटर मिला, आई वॉज सो हैप्पी. So as soon as I got my offer letter, तो मैंने डायरेक्टली रिज़ाइन कर दिया इंडिगो से. और मुझे इस ऑफर लेटर में बताया नहीं गया था कि तुम्हारा कब कब यहाँ पे ज्वाइनिंग होगी या फिर ऐसे कुछ, क्योंकि उसमें बस इतना लिखा गया था कि यू बीन सिलेक्टेड एंड वी विल बी स्टार्टिंग विथ योर प्रोसीजर्स एंड वीज़ा प्रोसीजर्स और ये सब चीज़ें. तो तुम्हें हम बताएंगे तभी आप रिज़ाइन करना. ओके, सो दे वर आस्किंग मी टू वेट until they tell me to resign. Do not resign right now.
सो आई वॉज लाइक कि आई वॉज लाइक अब अभी इनका मेरे को ये मेल तो आ गया है कि आई एम सिलेक्टेड एंड ऑल ऑफ दिस, तो इनका ज्वाइनिंग डेट्स भी आ जाएगा बहुत जल्दी। तो मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे रिज़ाइन कर दूँगी, मैं गोवा चली जाऊँगी, आई स्टे विथ माई फैमिली यू नो, एंड थोड़ा टाइम मैं फैमिली के साथ भी बिता दूँगी, बिकॉज इट वॉज बिन लॉन्ग दैट आई डिड नॉट बी विथ माई फैमिली फॉर अ लॉन्ग। सो आई वॉज लाइक कि चलो यही टाइम है वेर आई कैन बी विद माई फैमिली एंड थिंग्स लाइक दैट। तो मैंने रिज़ाइन कर दिया, मैंने 1 महीना वहाँ पे करा काम। उस 1 महीने में भी चीज़ें वॉज सो अप एंड डाउन एंड दिस एंड दैट। सो यू हैव सीन माई वीडियो, द लास्ट फ्लाइंग वीडियो दैट आई हैव, लास्ट फ्लाइट विद द इंडिगो, वो मैंने डाला था। तो दैट वॉज द डे, एंड एज सुन एज आई लेफ्ट इंडिगो आई वेंट बैक टू माई गोवा। I went back home, I relaxed, I enjoyed, I went out with my family, I went to my village और मैंने वहाँ पे भी टाइम स्पेंड करा until I got this mail। तो मुझे वापस एक मेल आता है saying after 2 months, आफ्टर 1 मंथ, जैसे मैंने रिज़ाइन करा, हाँ आफ्टर 1 मंथ मुझे मेल आता है। तब तक तो इनका ये प्रोसीजर्स चल रहे थे कि हमें डॉक्यूमेंट्स सेंड करने थे, यू नो ऑल द डॉक्यूमेंट्स दे वर आस्किंग अस टू सेंड। तो एक डॉक्यूमेंट्स के लिए हमें वो मेल करते जा रहे थे कि हमें ये डॉक्यूमेंट भेजो, ये मेडिकल फॉर्म भेजो, ये भेजो, वो भेजो। बट इन इंडिया यू डोंट डू एनी मेडिकल्स, ओके, यू डोंट डू एनीथिंग, बट वो लोग का एक फॉर्म होता है जहाँ पे तुम फिल करते हो ना कि तुम्हें ये प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारी सर्जरी हुई है, क्या हुआ है, वो सभी इन्फॉर्मेशन वो जब तुम्हें देते हैं एज अ फॉर्म, तो यू हैड टू फिल दैट फॉर्म। तो हमें उस 1 मंथ में हम वही कर रहे थे कि हम फॉर्म्स फिल करते जा रहे थे, यू नो, देन सेंडिंग देम दिस इन्फॉर्मेशन, पासपोर्ट, ये वो सब कुछ भेजने के लिए, एक्सपीरियंस लेटर एंड एवरीथिंग। तो वो टाइम ले रहा था। तो then I got a mail in a month. Unfortunately, we don't have a exact date of joining for you. We'll be giving you the date of joining next year. Yeah, in next year 2025 from Jan to March के बीच में they will give me the date of joining. And I was like what the hell। जून में तो मैं घर पे थी, तो जून में मुझे ये मेल आता है कि तुम्हारा यू नो ज्वाइनिंग डेट जैन टू मार्च के बीच में होगा, एंड बिकॉज वी डोंट हैव द स्लॉट नाउ फॉर द ट्रेनिंग। आई वॉज सो ब्रोकन कि मैं सोच रही थी कि अब मैं 6 महीने करूँगी क्या, लाइक जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लाइक 7 months, what would I even do at home? And then my dad and mom was like, you don't worry, you will get it, and if you're not getting, it's okay that you're spending time with us, that which matters the most, because देखो बाद में तो जाना ही है, and then you will have to work, then again you will have to do this long distance and ये वो, तो it's okay until you are here, just enjoy। तो I was enjoying again, I was like, ये था मेरे back of mind। I mailed them saying I already have left my job and I'm home, and if there is any possibility where you can give me date of joining as soon as possible, I am available to join on that day itself whenever you give me the dates। तो मैंने उनको ये मेल भेज दिया प्रोफेशनली। उसके बाद में मुझे 1 दिन के बाद में मेल आता है दैट वी विल कंसिडर यू एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस एंड वी विल गिव यू एज सुन एज इट्स पॉसिबल, द डेट्स आर ओपन, द स्लॉट्स आर ओपन। तो मैंने बोला ओके फाइन, ये सब ठीक है। तो जून चला गया, जुलाई चला गया, अगस्त चला गया। इसके बाद में मैं गई अगस्त में, आई वेंट बैक टू माई विलेज कि मैं सोच रही थी कि सबको मिलूँगी और आई विल डू सम ऑफ माई हेल्थ चेकअप एंड एवरीथिंग, ताकि कुछ निकल ना जाए, क्योंकि ऑलरेडी मेरी हेल्थ की लगी पड़ी थी इन इंडिगो, बिकॉज द फ्लाइट्स, एवरीडे फ्लाइट्स, ये वो, माई बॉडी वॉज टोटली exhausted because there was no proper rest, no proper food, nothing। So मैं जैसे मेरे घर चली गई, then I did my all body checkup, ये वो। तो then I got to know that I had a cyst। For that I had to get the surgery done, and I was so upset that point of time। I was like thank God that I got to know now because I have time to get rid of it। सो मैंने बोला, जैसे मुझे पता चला कि मुझे सिस्ट है और मुझे सर्जरी करनी पड़ेगी, मैंने फटाफट से डैड को बोला कि करना पड़ेगा ये वो। डैड वाज लाइक डू इट। तो हम गए हमारे फैमिली डॉक्टर के पास, एंड देन आई डिड द सर्जरी मेरी हुई सितंबर में हुई, एंड सितंबर में मेरी सर्जरी के पहले ही आई लॉस्ट माई अंकल। तो मेरी सर्जरी और पोस्टपोन्ड हो गई,
and that surgery was very bad phase for me, but which got cleared, and luckily that was not a big problem. बट बोला गया था कि इफ़ आई वुड कीप दैट सर्जरी फॉर अ लॉन्ग लाइक पेंडिंग, क्योंकि मुझे बोला गया था इट इज़ नॉट दैट बिग ऑल्सो, तुम रख भी सकते हो उस सर्जरी को, सॉरी उस सिस्ट को, और तुम निकलवा भी सकते हो. आई वाज लाइक आई वुड रिमूव इट राइट अवे बिकॉज आई कैंट कीप दिस इन माई माइंड कि आई हैव समथिंग इन माई बॉडी. सो मैंने वो निकलवा दी, एंड आफ्टर दैट आई डिड द चेकअप. आफ्टर दैट आई कुडंट, आई वॉज बेड रेस्टेड फॉर अ वीक और 2, एंड देन उसका ड्रेसिंग चल रहा था अप एंड डाउन. उसके बाद आई केम बैक टू गोवा. नहीं, जिस दिन मेरी सर्जरी थी, सर्जरी के नेक्स्ट डे ही मुझे ज्वाइनिंग लेटर आता है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आती है, दैट माई ज्वाइनिंग डेट इज़ ऑन 11th November and this is in September. Okay, then I just have an October month and September में मेरी ज्वाइनिंग डेट आती है, and I be like oh fuck and have my surgery, like you know like stitches are there. मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी, बिकॉज वहाँ पे भी जाके मेरा मेडिकल होने वाला था, यहाँ पे आके मेडिकल होने वाला था. आई वॉज सो स्कैर्ड. आई वॉज लाइक इतने टाइम से मैं इनको ज्वाइनिंग डेट मांग रही थी, ये दे नहीं रहे थे, अब मुझे ज्वाइनिंग डेट नहीं चाहिए और ये दे रहे हैं, यू नो समथिंग लाइक दैट हैपेंड विद मी. एंड आई वॉज लाइक चलो अब है ये तो लेट्स गो, लेट्स डू दिस, लेट्स लेट दिस हैपन, बिकॉज एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न. दैट इज़ वॉट आई बिलीव इन माई लाइफ. तो मैंने बोला अगर डेट आई है तो देर इज़ समथिंग दैट इज़ केप्ट फॉर मी. तो मैंने बोला चलो चलते हैं. देन आई टोल्ड माई डैड दैट आई हैव ज्वाइनिंग डेट्स, ये वो, एवरीवन गॉट हैप्पी, एंड आई जस्ट हैड 1 month. सो इन दैट 1 month आई हैड टू गेट रिकवर. तो मुझे बताया गया था कि ना देसी अंडे खाओ, उससे ना तुम्हारी स्टिचेस रिकवर हो जाती है बहुत जल्दी. घी खाओ, घर वाला घी खाओ. तो माई मॉम, माई फैमिली, दे वर लाइक एवरी डे आई वॉज ईटिंग 2 to 3 desi ande. I used to have dal, chawal and ghee, homemade ghee, like totally. And I was थोड़ी सी मैं फूल गई थी उस टाइम पे. And then I was like I got recovered luckily in a month. In a month I got recovered. और मुझे टिकट्स आए थे 7th November के, और 4th November में मेरे भाई का कुछ पूजा था घर पे. हमारे भगवान का कुछ एक पूजा था विच वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द फैमिली. अभी मेरा था 7th November टू कम टू अबू धाबी, एंड मेरे भाई का था 4th November इन माई विलेज. ओके, और मेरी फ़्लाइट है गोवा से. सो यू वर अंडरस्टैंडिंग कि आई वॉज सो हैसल्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि हाउ एम आई गोना गेट दिस डेज ऑफ आउट ऑफ माई टाइम लाइक. तो जैसे हम गए वापस गांव में चले गए थे फॉर माई दिस पूजा. जैसे पूजा हो गई 4th November को पूजा हो गई. तो ऑन 6th afternoon वी जस्ट लेफ्ट फ्रॉम देयर आफ्टर दिस पूजा गॉट ओवर एंड एवरीथिंग. ऑन 6th afternoon वी जस्ट लेफ्ट एंड वी रीच्ड इन गोवा अराउंड 2 in the morning, 2:30 in the morning इन गोवा. और मेरी गोवा से फ़्लाइट थी 7th को अर्ली मॉर्निंग विच वॉज अराउंड 5:30 फ्रॉम मोपा. समझ रहे हो, मैं रहती डाबोली में हूँ, मोपा से मेरा था फ्लाइट विच इज़ लाइक ऑलमोस्ट 1.5 hours टू गो. एंड देन आई स्टार्टेड पैकिंग एंड देन आई लेफ्ट होम बाय 4:30, क्योंकि मेरी 6:30 की फ़्लाइट थी. तो 4:30 में निकली, 6 बजे तक मैं एयरपोर्ट में पहुँची. Then I did my check-in and everything, and then on the 7th I came here. So before coming here, it was a big hassle for me. तो इनका कुछ बता नहीं सकते कि तुम्हें कब ज्वाइनिंग डेट आएगी, कब क्या होगा. नथिंग कैन बी टोल्ड बिकॉज दे गिव एवरीथिंग उस टाइम पे, और उस टाइम पे चीज़ें होनी चाहिए. तो मुझे ऐसा टाइम लग गया था, लाइक दे टुक मी बिकॉज आई वॉज मेलिंग दैन कि मुझे जल्दी से दे दो डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मुझे आई कॉन्ट वेट टिल Jan एंड दिस दैट. तो उन्होंने मुझे जल्दी से दे दिया. सो देन आई केम हियर, एंड जैसे मैं यहाँ पे आई, देन फ्रॉम 11th माई ट्रेनिंग स्टार्टेड एंड आई हैव अपलोडेड माई ट्रेनिंग व्लॉग ऑलरेडी, सो गो वॉच दैट. सो येस, सो दिस वॉज द प्रोसीजर दैट टेक्स टाइम. कितना टाइम लेता है अभी तो मैंने बता दिया. सो एज पर दैट, और जो भी इंटरव्यू देने जा रहे हो, हु एवर इज़ गोइंग टू गिव इंटरव्यू, वेरी ऑल द बेस्ट फॉर देम. एंड जस्ट एक चीज़ मैं बोलूँगी, बी कॉन्फिडेंट, डोंट लूज़ होप
and just be yourself. तुम fake मत बनो, जैसे तुम हो, be that. And whenever you're giving an interview, just keep smile on your face so that the interviewer knows that you're not nervous or something. If you are even nervous, keep it within you. मत दिखाओ. And I know it's an interview, it's a big time for you guys, and मुझे भी था एक time पे, so I know the feeling how it's gonna be. I'm just gonna say one thing: be confident, or just let it go. Like, just go with the flow. That is what I'm gonna tell you, because जो होना है वो होगा. So just go with the flow, be calm, give your interviews properly. Or if you guys want to know anything, please comment down below, and I'll be right here to help you guys. And yes, so this was my interview procedures which I went through, and I hope these things could help you guys as well, कि क्या क्या होता है, GD कैसा होता है, क्या होता है. So I hope I have helped you guys in a little way. So if I did, please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I hope you guys love this video and enjoyed. So see you guys in my next vlog. Bye, be happy, be safe.